कि आने वाली नस्लों को हमारा यही मसला है कि वो ना आए। ہاں جی بہت شکریہ جی. شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں اچھا ملا قباسی. ورلڈ فارسٹ ڈے ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے اور ہمارے کلائمیٹ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے, اوزون لیئر کی ڈپلیشن ہوتی ہے. اور سے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ایک منصوبہ دیا, ملین ٹری منصوبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ورلڈ فارسٹ ڈے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. کچھ جنگلات کی کمی نہیں ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہر طرف آپ کو جنگلات نظر آئیں گے بے شمار. لیکن اب اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس تعداد کے ساتھ جنگلات زیادہ ہیں اسی حساب سے جنگلات کی کٹائی بھی جاری ہے. مطلب دڑا دڑ لوگ جو ہے نا جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں. ہماری جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری انہی درختوں پر منحصر ہے اور انہی سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح جنگلات کو کاٹتے رہے تو ہمیں بہت سارے آنے والے دنوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ سے بھی انٹرویو لیتے ہیں ہم اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا ان کی رائے ہے, کس طرح سے ان جنگلات پر قابو پایا جا سکتا ہے. بیسیکلی ایک دو جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ آگ لگ جاتی ہے. ابھی یہ دیکھیں اس طرف جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے. کافی جنگلات میں جو ہے نا نقصان ہوا ہوا ہمیں, مطلب زیادہ تر جو ہے نا وہ اس آگ سے جل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ایک تو آگ لگتی ہے, اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. عوام کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. چلتے ہیں موجود ہیں باسط علی عباسی جو دھیر کوٹ بوائز ڈگری کالج دھیر کوٹ میں گرین کلب کے صدر بھی ہیں اور ان کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں گرین کلب کے حوالے سے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ ورلڈ فارسٹ ڈے ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو 1971 سے اس پر ورک کیا جا رہا تھا. لیکن 2012 میں ویری فرسٹ ٹائم UN میں یعنی کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کی ریزولیوشن پاس ہوئی اور 2013 میں ویری فرسٹ ٹائم 21 مارچ 2013 کو یہ پوری دنیا میں منایا گیا. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اویئرنیس شو کرنی ہے فارسٹ کے بچاؤ کے حوالے سے. اور گرین کلب ڈگری کالج دھیر کوٹ بھی اسی پر ورک کر رہا ہے. سے مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل دھیر کوٹ کمیونٹی میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے ورلڈ فارسٹ میں؟ ہاں دیکھیں, میں اس کو اس طرح ایلیبریٹ کروں گا. آج سے 10 سال پہلے دھیر کوٹ میں کتنی برف پڑتی تھی. ٹھیک ہے, آج آپ دیکھ لیں, آپ باہر نہ جائیں, گزشتہ سال اور اس سال کے موسم میں کمپیریزن کریں. پچھلے سال 2021 میں مئی تک لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھی, لیکن اس سال آپ دیکھ لیں مارچ میں ہی موسم شدید ہو گیا ہے. اس کے بیہائنڈ فیکٹرز ہیں کچھ. سب سے پہلا جو فیکٹر ہے ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہم پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہاں لوگ جلانے کے لیے بھی لکڑی استعمال کر رہے ہیں, مکان بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی. اور دوسری جو بیسک چیز ہے وہ ہم لوگ جنگلوں میں آگ لگاتے ہیں. اس دفعہ ریکارڈ آگ لگی ہے اور بہت زیادہ جو ہے بری طرح سے ہمارے جنگلات متاثر ہوئے ہیں. جنگلات کے جتنے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں تھوڑے بہت پیسے لے کر وہ تعلق کی بنیاد پر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ چیزیں پریکٹیکلی ہم نے دیکھی بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ گرین کلب اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اچھا ملا قباسی. آج ورلڈ فارسٹ ڈے ہے, اس کی مناسبت سے جو ہے نا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوور آل اگر دھیر کوٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کافی زیادہ درخت موجود ہیں, تو کیا اسی حساب سے درختوں کی کٹائی بھی جاری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ورلڈ فارسٹ ڈے ہے تو اس کی بھرپور طریقے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جہاں تک دھیر کوٹ کی بات ہو تو میرے خیال سے حکومتوں کو اس بات پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور جو وہ پرمٹ دے رہے ہیں اس حساب کو مد نظر رکھ کے دیں کہ کس حساب سے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور واپس جو لگ رہے ہیں ان کی کیا. عوام اس حوالے سے کیا کر سکتی, کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اگر اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. حکومتوں کی طرف سے ظاہر ہے ہر چیز ان کی طرف نہیں دیکھی جا سکتی. کم سے کم ہمیں اپنے اس زمین پر جس کے ہم مالک ہیں وہاں پر کم سے کم ہمیں اگر ہم دوسرے پودے نہیں لگا رہے تو کم سے کم پھلدار پودے ہم لگا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو شجر کاری ہوتی ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ہمارے جو چرواہے ہیں ان کا مسئلہ ہوگا یا ہماری چراگاہیں ختم ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے.
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौके पर? अच्छा, आज फॉरेस्ट डे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, स्पेशली जो हम कश्मीर के लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बेजा कटाई हो रही है दरख्तों की। जो हमारी नीड्स हैं, असल में हमारी जो नीड्स हैं उन्हें तो पूरा करने के लिए हमें कटाई करनी चाहिए, लेकिन बेजा इन चीज़ों की कटाई हो रही है दरख्तों वगैरह की। तो जिस तरह मैं नानूगा अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो ब्राज़ील और कनाडा, US ये जो मालिक हैं, तो ये जिस तरह इनकी कटाई कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस के साथ या उसी टाइप्स की जो दरख्त वगैरह हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, तो उन्हें लगा भी रहे हैं। तो आज फॉरेस्ट डे है, तो मैं सबसे यही कहूँगा यहाँ पे, यानी कि जितने भी सिटीज़न ऑफ कश्मीर और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें जो वुड्स वगैरह हैं और ट्रीज़ हैं, ये आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो जिस तरह आप इन्हें यूटिलाइज़ करें तो इसी तरह इनकी ग्रोथ के लिए भी काम अच्छा, करें। एक Thank मेरा you. छोटा सा क्वेश्चन है कि जो दरख्त अभी लगाए जा रहे हैं, क्या ज़्यादा तादाद में लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा कटे देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये यही चीज़ शो कर रहा है कि ये जिस तरह काटे जा रहे हैं उस तरह वापस लगाए नहीं जा रहे, क्योंकि एकदम से अब ये जो तीसरा मंथ चल रहा है, अभी मार्च का मंथ चल रहा है, और हमारा ये देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत पीक लेवल तक चली गई है। तो ये आज से पहले अगर 5-7 साल पीछे जाएँ तो ये काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अब जो कटाई ज़्यादा हो रही है और वापस लगाए कम जा रहे हैं। और इस तरह ये भी है कि जो हमारी जो थोड़े कीमती दरख्त हैं, तो वो लगाने के वो कट जाते हैं। जब हम उन्हें काट लेते हैं तो उसके बाद हम जो थोड़े जिस तरह हम देवदार का दरख्त काट के वापस सवेदे को लगाते हैं, जो पानी भी ज़्यादा हमारा अब्जॉर्व करता है, जिससे हमें वाटर का भी मसाइल, पानी के मसाइल का भी, वाटर जो के प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम जंगलात की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे क्लाइमेट टोटली चेंज होता है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है और अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ में पहुँचते हैं बहुत सारी डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मसाइल, पानी के मसाइल का भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम जंगलात की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे क्लाइमेट टोटली चेंज होता है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती है और अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ में पहुँचते हैं बहुत सारी डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे इस इम्पॉर्टेंट डे के हवाले से एक इंटरव्यू आप ले रहे हैं और लोगों को जो है वो इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ये बुनियादी चीज़ है। अच्छा, ये बताएं, क्वेश्चन है कि जो आग लगाई जा रही है इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखें, इस हवाले से अगर आप कश्मीर के ऊपर देखें तो पिछली बार इस एरिया में इतनी ज़्यादा आग लगाई गई कि जिसका नोटिस जो है वो PTI के एक सीनियर रहनुमा तौसीफ अब्बासी साहब ने भी लिया था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई उस तरह का एक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बुनियादी तौर पर यह बात है कि आप लोगों को नॉमिनेट करके उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो तभी हम इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा हम इस ग्रीन क्लब की एक्टिविटीज़ को मज़ीद इसका दायरा कार पूरे आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाएं। जैसे आप देखें कि इमरान खान ने एक मंसूबा दिया, मिलियन ट्री मंसूबा, और उसकी पजीराई जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी हुई और उसको मुख्तलिफ एरिया, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के सदूर ने भी उसको सेकंड किया। तो बुनियादी तौर पर यह बात है कि हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। यहाँ के लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो खुद ही उखाड़ के उन दरख्तों को लेके जाते हैं। तो ये हमारा बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश। अच्छा, दीरकोट के हवाले से बताएं, यहाँ पे ज़्यादा दरख्त लगाए जा रही है, काटी जा रही है? दीरकोट के अंदर अगर आप देखें तो अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी बहुत सारे दरख्त लगवाए हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम जब तक इन चीज़ों को उस तरह से प्रॉपर इनकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे, यहाँ पर जो नुमाइंदगान है जिनका ये काम है वो भी एक्टिव रोल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे दरख्त लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ अब्बासी है। क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के बारे में? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के बारे में आज 21 मार्च है, आज आलमी सतह पर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जा रहा है। तो सबसे अहम जो मसला आजकल फॉरेस्ट के लिए वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन न सिर्फ कश्मीर लेवल या पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है। इस पर दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया की 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो इसका तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो ब्राज़ील में और बाकी कोलंबिया और बाकी जो 7-8 और कंट्रीज हैं उनमें है। फॉरेस्ट है वो भी डिफॉरेस्ट हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है लेकिन वो डिफॉरेस्ट हो रहा है। ये कहते हैं कि 1.5 एकड़ पर सेकंड के हिसाब से डिफॉरेस्ट हो रहा है। कहते हैं कि 40 साल बाद रेन फॉरेस्ट जो है ये डेजर्ट में चेंज, जो सबसे बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, वो भी कहते हैं कि जिस तरह से उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रही है 40 साल के बाद वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे दरख्त लगाए जा रहे हैं और कटाई भी की जा रही है। लेकिन अगर आप दीरकोट की बात करें ना तो यहाँ पे कटिंग ज़्यादा हो रही है और इसके सोर्सेज जो है हमारे
हमारे पास इतने महदूद हो गए हैं कि कह रहे हैं कि आने वाली नस्लों को हमारा यही मसला है कि वो ना आए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।